Good morning, children. This is class 4, value education, and in this today we are going to take the second part of the chapter. We have already discussed, and you have seen first video on this chapter, which had covered at least more than or at least half part of the lesson. Okay, so in this story we have seen in the first part that there was a great emperor in China who had no successor. He had no children, so he was worried that who will be the next king after he dies. Okay, so he thought that he must choose a young young boy from his kingdom. But the condition was this, that because this was a very honest person, and he also wanted a honest person to be the next king. Okay, so he thought to choose a honest child, and he wanted to keep that child with him, uh, so that he gets the training, he gets his company, and when the time comes, he may become king of the China. Okay, so for this purpose he planned something. What he did, he called all the children of his kingdom in his palace. Okay, and he gave them one small packet of seeds. That those were the flower seeds. He told them, sow these seeds and take care of them for 1 year, and after 1 year, when the flowers grow, each child has to bring we go to the next page. So he told them that each child has to bring the flower pot with the flowers. Okay, this only he told them. So among these children there was a boy whose name was Xiang. There was a boy who was Xiang. He was a hard-working and honest boy, and moreover he was a gardener also. माली का काम भी उसको पता था, तो वो करता था. So he also got a one small packet of the seeds. He went to his house and he sowed all these seeds. उसने उनको बो दिया गमले के अंदर, फ्लावर पॉट में. But for the 1 year he was looking after that कि उसमें से कब when the small plants will come out, when they will grow, then when they will bloom, कब उनमें फूल आएंगे, कब क्या होगा, and nothing happened. The whole year he was taking care of that flower pot, but nothing came out. Okay, so when the time came, finally he had to go to the palace with the flower pot and with the blooming flowers. So he was very upset. He told his father that he never wanted to go. उसने कहा जब उसमें फूल ही नहीं है तो मैं लेके करूँगा क्या, मैं लेके क्यों जाऊँ इसको. बट हिज फादर, उन्होंने शायद उसको कन्विंस किया, बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन द स्टोरी, बट इट इज़ ऑब्वियस कि उसके फादर ने उसको बोला कि यू मस्ट गो, जो वट एवर इज़ द कंडीशन यू मस्ट गो. सो ही वेंट विद द flower pot which had no flowers, and other children, all those who were standing in a queue, were having, all of them were carrying one pot with which was full of flowers. So now here I'm starting the second video from here. Xiang's father told him that he had worked his hardest and done his best, and that was good enough. ज़ियांग के फादर ने उसको समझाया कि अब तुमने पूरे साल इस पर मेहनत करी है, तुमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है, ये इतना ही काफ़ी है. ही इनकरेज हिज सन टू गो. उसने इनकरेज किया कि नहीं, तुम यू मस्ट गो, अब तुम जाओ. सो ज़ियांग टुक द एम्प्टी पॉट एंड स्टूड अमिड्स hundreds of children with their huge and colorful flowers. उसने वो चला गया. He was carrying only pot. There was a mud in that, but no flowers, no plant, no flowers. And all other children were standing there with the colorful flowers. All the children stared at his empty pot and made fun of him. उन्होंने जब उसको देखा कि ये खाली पॉट लेके खड़ा है, उसमें ना तो पौधा है, ना उसमें प्लांट है, ना उसमें फ्लावर्स है, तो दे ऑल स्टार्टेड स्टेयरिंग. मैंने उन्होंने उसको घूरना शुरू किया कि व्हाट्स रॉन्ग, तुम्हारे में क्यों नहीं पौधा है, वाई यू आर स्टैंडिंग विद द pot without the plant and the flowers. And they started making fun of him. उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. ठीक है. After then, but he was there.
ही डिड नॉट गो फ्रॉम दैट, ही डिड नॉट लीव द पैलेस। वो उसने सोचा कि मुझे राजा को तो दिखाना है, मुझे तो बात करनी है, एंड आई हैव टू स्टे हियर टिल माई नंबर कम्स, टिल माई दिस थिंग, मेरा जब भी उसका मेरा नंबर जब भी आएगा तो आई हैव टू मीट द किंग। ओके, ही वॉज वेटिंग फॉर दैट। आफ्टर when his turn came, after examining all the flowers, the emperor called Jiang forward and asked him what happened. उन्होंने दूसरे बच्चों के सब फूलों को देखा किंग ने, और उसने फिर उस जियांग को अपने पास बुलाया, आगे बुलाया, और उससे पूछा व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ। इन टीयर्स जियांग टोल्ड हिम हाउ हार्ड ही हैड वर्कड। कि जो जियांग जो था उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसने उसको बताया किंग को कि हाउ हार्ड ही हैड वर्कड। उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत करी इसके ऊपर, बट नथिंग केम आउट। द एम्परर हर्ड हिज स्टोरी एंड सेड, माई बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू वुड बी द नेक्स्ट एम्परर। और किंग ने पूरी उसकी बात सुनी कि उसने कहा, जब उसने बताया कि मैंने बहुत हार्ड वर्क इसके ऊपर किया, बहुत मेहनत करी, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, इसलिए मैं ऐसे ही लेके आ गया हूँ। देयर इज़ नो प्लांट, देयर आर नो फ्लावर्स। Then the king all of a sudden said, he heard his story, and all of a sudden he said, my boy, मेरे बच्चे मतलब बेटे, उसको बोला, I am proud of you, मुझे तुम्हारे पर बहुत गर्व है, you would be the next emperor, और तुम अगले राजा, नेक्स्ट राजा तुम बनोगे। He chose him as to be the king. Everybody was shocked to hear the emperor's words. और जितने बच्चे और जितने और के जो उसके कोर्ट के जो सब थे लोग, मंत्री वगैरह जैसे होते हैं कोर्ट के, वो राजा के दरबार में, तो दे वर शॉक टू हियर। उन्हें ये लगा कि जब बच्चे अच्छे अच्छे फूल लाए, उनमें से तो किंग ने किसी को नहीं चूज़ किया, एंड वाई ही हैज़ चूजन दिस बॉय विद ए एम्प्टी पॉट। तो दे ऑल वर सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड ऑल्सो कि राजा ने, किंग ने ये कैसा फैसला ले लिया। ही देन एक्सप्लेन्ड एंड टू जस्ट टू काम डाउन देयर सरप्राइज, उनके सरप्राइज को ठंडा करने के लिए, उनको शांत करने के लिए राजा ने कहा, द किंग एक्सप्लेन्ड, आई डोंट नो हाउ एवरी वन एल्स ग्रीव फ्लावर्स, मुझे नहीं पता कि और सब ने कैसे फूल को उगा लिया, बिकॉज वॉट आई हैड गिवन वर बॉइल्ड सीड्स। उसने कहा कि क्योंकि मैंने जो दिए थे वो बॉइल्ड सीड्स थे, यानी उन सीड्स को एक बार बॉयल करके ठंडा करके और दे दिया गया था। तो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ फैक्ट। let me finish the story, then I'll tell you what was the meaning of the boiled seeds. He praised the boy for his honesty and chose him the next emperor of China. और वो उसने इसके बच्चे की, जियांग की बहुत तारीफ़ करी, उसकी ईमानदारी की, और उसको नेक्स्ट एम्परर बनने के लिए चुन लिया, यानी ही चोज हिम टू बी द नेक्स्ट, इसको अपने पास ले लिया उसने। The secret of the boiled seeds was this, that because अगर आप किसी भी any seed if you take and you boil it, और उसके बाद उसको फिर से आप ड्राई भी कर दो, उसका पानी सब सूख जाए फिर भी, लेकिन the plant will never grow out of that seed, because क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट पे आने से वो जो सीड है उसके अंदर जो छोटा प्लांट, कहते हैं ना कि प्लांट जो होता है सीड के अंदर सोया रहता है, जब उसको मिट्टी मिलती है, ठंडक मिलती है और गीलापन मिलता है, मिट्टी का पानी मिलता है, देन इट कम्स आउट आफ्टर टेयरिंग ऑफ द शेल, और वी कैन से द कवर ऑफ द सीड। सो वंस इट इज़ बॉइल्ड, जो वो पौधा हो जाता है वो डेड हो जाता है ड्यू टू दैट हीट एट द बॉइलिंग पॉइंट। सो यही यहाँ इसके संग भी हुआ था कि वो बॉइलिंग सीड्स थे, लेकिन जब उनको दोबारा से ड्राई कर दिया गया तो नोबडी कुड मेक आउट कि ये क्या बॉइल्ड हैं, कैसे, वो वैसे ऑर्डिनरी सीड्स की तरह लग रहे थे, बट दिस सीक्रेट वॉज हिडन। ये बिकॉज उसको पता था कि जो ईमानदार बच्चा होगा वो उन्हीं सीड्स पे ही काम करेगा, और जो बेईमान होंगे वो सेम सीड्स लाके दूसरे वाले लाके बो के फूल पौधे बना के चले आएंगे। सो दिस वाज द फैक्ट। समझ गया, जो ऑनेस्ट होगा वो उन सीड्स को नहीं बदलेगा। सो दिस वाज द थिंग, एंड जियांग डिड द सेम थिंग व्हाट द किंग वांटेड। किंग चाहता था कि जो ईमानदार बच्चा है उसे पता था कि उसके पॉट में प्लांट्स नहीं आने वाले हैं, एंड दैट्स वाई ही चोज Jiang to be the next king. So this was the story, children. He got the we can say prize of this, his honesty. Okay, so honesty always pays some good reward. So here we read from this. This is a good moral for this story. Honesty is the best policy. यानी ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है,
सबसे बढ़िया व्यवहार है, सबसे बढ़िया अच्छी बात है। और ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द हियर वैल्यूज विच वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन बट स्टिल आई एम रीडिंग इट। ऑनेस्टी गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू स्पीक अप योर माइंड। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे राइटर ने बोल रहा है कि ईमानदारी जो है वो हमें अपने दिल की बात को कहने की ताकत रखती है। यानी कि अगर हम सच्चे हैं और ईमानदार हैं तो जो भी हमारे दिल में है, जो हमारे मन में है, हम ओपनली बोल देंगे। द लायर्स हैव टू टेल द लाइज, है ना। उन्हें झूठ बोलने के लिए बहुत सी कहानियाँ बनानी पड़ती हैं, बहुत कुछ कहना पड़ता है। बट जो सच्चा इंसान होता है, जो उसके दिल में होता है, वही उसके मुंह पे होता है। यानी कि वो जो भी होता है वो मुंह पे साफ साफ बात होती है। जैसे इस बच्चे ने बताया कि मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन कुछ भी नहीं निकला उसमें से। सो इट गिव्स यू द करेज टू टेल द थिंग्स एज दे आर। और जो ईमानदार बच्चा होगा, कोई भी इंसान, एनीबडी हु इज़ ऑनेस्ट होगा, उसके पास इतनी हिम्मत होगी कि वो उस चीज़ को वैसे के वैसे ही डिस्क्राइब करेगा। जो भी हुआ है उसको सच सच बता देगा, बिकॉज दैट पर्सन इज़ ऑनेस्ट। क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं करी, कोई बेईमानी नहीं करी। सो दैट पर्सन विल naturally tell the thing honestly. At times you may be tempted to hide the truth. और अक्सर ऐसा होता है कभी कभी कि तो आप बच्चे you all children are tempted, यानी आप प्रलोभन में पड़ जाते हैं कि सच्चाई को छुपा लें। यानी कि hide the truth, hide करना माने छुपाना। सच्चाई को छुपा लें यानी कि कुछ गलत काम किया है या कुछ बेईमानी करी तो फिर वो सच्चाई को छुपाना पड़ता है, झूठ बोलनी है। मीन्स हाइडिंग द ट्रूथ मीन्स टेलिंग लाइज, झूठ बोलना पड़ता है। But you know that by doing so you would become restless and feel guilty within. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो हैं अंदर से बेचैन हो जाते हैं, आपका मन बेचैन हो जाता है। बिकॉज ये एक तरह से लगता है कि हमने कुछ चोरी कर दी, कुछ गड़बड़ कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। एंड फील गिल्टी, और अंदर से ऐसे अपराध की भावना आती है कि हमने कुछ गलत किया है। ठीक है, बिकॉज चोर मन का काटता है कि जो हमने बोला है या बताया है, जो बात प्रोड्यूस करी है वो फैक्ट नहीं था, हम झूठ बोल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट, इफ़ यू आर नॉट all right, I am just ending here within 1 or 2 lines. If you are not honest, अगर आप ईमानदार नहीं हैं, you keep feeling disturbed and may get caught. और आपको ये फीलिंग हमेशा डिस्टर्ब करती है कि आप पकड़े जाओगे, कभी आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। ए पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट इज लाइक बाई ऑल, और जो ईमानदार इंसान होता है वो सबके द्वारा पसंद किया जाता है। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू।